हेलो स्टूडेंट्स। मैं बीएल शर्मा, मैथ सर, डिस्कसिंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस of the chapter 2, that is polynomials, class 10th, mathematics. In this class, I will be discussing total 5 case study based questions. Right? So let us discuss one by one all 5 questions. A park in Suryanagar in Delhi has swings made of rubber and iron chain. Rajan, who is in 10th class, has noticed that this is in a mathematical shape. She has learned in mathematics class. She drew the shape of the swing on her notebook as shown below. And now you have to give the answers of certain questions. And now the questions are on your screen. The first question is, the shape of the curve is, here this is our curve and we know this is a parabolic curve. So here we can write parabola. Second question is, how many zeros are there for this parabola? Means the parabola shown in the figure. आपको ये बताना है कि इस फिगर में, इस कर्व से मैं कितने जीरोस इसके पैराबोला के मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के है इस कर्व में। तो जीरोस के लिए देखिए क्या होता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व इज, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करा, देखिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कितने पॉइंट पे मींस ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका जो पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोस है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 जीरोस हैं कौन कौन से हैं। देखिए इस पॉइंट का जहां पे इंटरसेक्ट करा है एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, इस पॉइंट को भी ये इंटरसेक्ट करा है एक्स एक्सिस पे ये कर्व, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 3 है। सो जो 2 जीरोस हुए -1 and 3. The x coordinate of point of intersection of x axis and the curve are said to be the zeros of the given polynomial. इस पोलिनोमियल का जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस x मींस एक्सिस पे उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं, x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही x एक्सिस पे 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट को ही हम जीरोस कहते हैं। सो जीरोस आर -1 and 3। अब फोर्थ पार्ट ये है कि ये जो हमने पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस -1 and 3 है, उस पॉलिनोमियल को आप बताइए, व्हाट इज यू हैव टू एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल। हमें पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। Here x alpha you can take -1 and beta you can take 3. So alpha plus beta, that is -1 plus 3, that is 2. And product means alpha into beta, that is -1 into 3, that is -3. इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज, in place of alpha plus beta you can write 2 into x, and in place of alpha into beta you can write -3. So that is x square minus 2x minus 3. So the answer of the fourth part is x square
-2x-3। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोस -1 एंड 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि ये जो इसका जो वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्स पे कितना होगा। देखिए, एक्स का वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूं, इट इज गिवन 1, तो देखिए इसमें जहां भी एक्स है 1 पुट करिए, तो 1 होल स्क्वायर -2 into 1 -3, so 1 -2 -3, that is -4. So the value of the given polynomial at x is equal to 1 will be -4. तो ये सारे के सारे हमने we have given the answers of all the 5 questions on the basis of this case study 1. अब इसको 1 by 1 ऐसे क्वेश्चंस को हम मीन्स ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कन्वर्ट हम करते हैं। We already have given the answers. The shape of the curve is that is for a parabola and D is the correct option. How many zeros are there? We already have given these are the 2 zeros. So A is the correct option. The zeros of the polynomial shown in the figure, there are 2 zeros and these are -1 and 3. So that is -1 and 3, that is B is the correct answer. And the quadratic polynomial with zeros -1 and 3, that is x square minus 2x minus 3. So x square minus 2x minus 3, C is the correct option. And the value of the polynomial at x is equal to 1 is -4. So -4 means A is the correct option. That's all for this question. If we jerk a stress drop, certain waves are produced on the rope. जब किसी एक रोप को हम स्ट्रेच करते हैं तो एक वेव्स बनता है और वेव्स इस तरह का बनता है, देखिए, और ये है हमारा पैराबोलिक शेप. द फिगर गिवन बिलो शोज अ पार्ट ऑफ द वेव एंड नाउ आंसर द गिवन क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द फिगर एंड नाउ द क्वेश्चंस आर ऑन योर स्क्रीन. The shape which is shown in the graph is, we know this is a parabolic shape. So that is a quadratic. You can say that this is the shape of the quadratic polynomial, or the shape is of parabola. So we can write the answer here. That is parabola. Number 2, how many zeros are there? कितने zeros है? देखिए ये जो कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, ये इस x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2. Third part is the graph that is of this parabolic curve, that is ax square plus bx plus c opens upward. In this case, देखिए, the coefficient of a should be positive, means not negative, means it should be greater than 0. ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए अगर आपका जो शेप है ये पैराबोला अपवर्ड साइड में ओपन होता है, ऊपर की तरफ ओपन होता है तो. एंड द फोर्थ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज. तो उसके लिए पहले हमें जीरो चाहिए और फिफ्थ पार्ट को हमें पहले करना पड़ेगा. द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर, देखिए ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, दैट इज -1 है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट का 4 है. तो इसके दो जीरोस हुए, वन इज -1 एंड अदर इज 4. यस, ये इसके जीरोस हुए. एंड वी नो, और हमें पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस
एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा है, जहां पे एल्फा एंड बीटा टू जीरोस है. Alpha you can take -1 and beta you can take 4. So alpha plus beta, I will be writing here alpha plus beta, that is -1 plus 4, that is 3. Alpha plus beta की जगह हम 3 रखेंगे and alpha into beta, product of zeros, that is -1 into 4, that is -4. इस फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन प्लेस ऑफ एल्फा प्लस बीटा यू राइट 3x एज इट इज, and in place of alpha beta, that is -4. So the quadratic polynomial will be x square minus 3x minus 4. So answer of this question is x square minus 3x minus 4. So that's all for this question. But अब हम इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करते हैं. देखिए, the shape which is shown in the graph is, we already have written the answer, that is parabola, and that is B is the correct option. How many zeros? We already have written, there are 2 zeros. So A is the correct option. If graph opens upward, then the coefficient of x square means A should be positive, means A should be greater than 0. So here D is the correct option. The quadratic polynomial with zeros minus and over 4, that is x square minus 3x minus 4. A option. The zeros are -1 and 4, that is C is the correct option. Thus we have given the answers of all the 5 parts. Generally बोर्ड में 3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही केस स्टडी पे बन सकते हैं. So that's all for this question. The below curve represent a polynomial p in x. This curve. The curve meets the x-axis at point A. This point is A, and B. This point is B. And the y-axis at point C. This is y-axis, and this point is C. It is also given that the length OA is 2 units, means from here to here it is 2 units, and AB is 4 units, means from here to here this is 4 यूनिट. यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है. अब ये शेप आपने देखा कि ये एक पैराबोलिक शेप बन चुका है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर we have to give the answers of certain questions, and now the questions are on your screen. Observe the below diagram is this diagram and answer these questions. Question first is, what kind of this polynomial px is? This is a quadratic polynomial. 2 points पे intersect करता है. देखिए, 1 x एक्सिस को एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 zeros होंगे. That is why it is a quadratic polynomial, and we can write the answer here, that is quadratic. ये इसका द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. सेकंड पार्ट इसका ये है कि इसके जीरोस बताइए. देखिए 1 0, इसका ए पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. देखिए द डिस्टेंस O टू A, that is given 2 unit. So the coordinate of point A is 2, 0. एंड ए बी इज गिवन 4, मीन्स यहां से 4 है ए से बी, लेकिन ओरिजिन से देखिए कितना डिस्टेंस है, 2 + 4, दैट इज 6. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, दैट इज आर 6, 0. अब जीरोज के लिए हमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 2
and x coordinate of point B is 6. So the two zeros are 2 and 6. Number one. अब थर्ड क्वेश्चन के देखिए, थर्ड पार्ट, द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। देखिए ओपन ऊपर की तरफ हो रहा है, और हम जानते हैं उसके लिए क्या कंडीशन होती है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, मींस ग्रेटर देन 0. So that is the answer of this question. अब हमें फोर्थ पार्ट में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी टू जीरोस 2 and 6 है, उसको फाइंड आउट करना है। और उसके लिए देखिए फिर से हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे अल्फा इज मींस यू कैन 2 एंड बीटा इज 6 लेंगे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा that is 2 plus 6 that is 8, and alpha into beta that is 2 into 6 that is 12. यहाँ पे ये वैल्यूज हमें पुट कर देना है, so we can write here that is x square minus as it is alpha plus beta that is 8 into x as it is, alpha into beta that is 12 as it is. So the answer is x square minus 8x plus 12. That is the answer of fourth part. Fifth part is we have to find out the coordinate of point C point. इस point का हमें coordinate find out करना है, और ये point y axis पे, और y axis पे देखिएगा x का वैल्यू हमेशा ही 0 होता है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कि ये जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यहाँ पे हमें x का वैल्यू 0 रखना होगा, बिकॉज वी नो दैट x कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस 0। तो जैसे ही आप 0 रखेंगे, दैट विल बी 0, दिस विल बी 0 एंड दैट विल बी 12, सो दैट इज 12। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, x तो 0 है ही है, or the value of y will be 12. So what will be the coordinate here? 0, 12. इस तरह से इस क्वेश्चन के हमने सारे 5 पार्ट्स के आंसर दिए हैं। नाउ वी हैव टू चेक, वी हैव टू मेक इट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बनाने से देखिए वन बाय वन फिर हम इसको चेक करेंगे। द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट दैट इज क्वाड्रेटिक, दिस इज पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। Next part, the zeros are 2 and 6, and 2 and 6, C is the correct option. C is the correct option. The graph of the parabola, that A will be greater than 0. A is the greater than 0. The A is the correct option. The quadratic polynomial is x square minus 8x plus 12, and the coordinate of the point C that is 0, 12. So that's all for this question. Prem and her husband Anand, who is an architect by profession, visited France. They went to see Mont Blanc Tunnel, which is a highway tunnel between France and Italy. Under the Mont Blanc mountain in the Alps, and has a parabolic cross section. The mathematical representation of the tunnel is shown in the figure in the graph, and that is like this. ये इसका एक शेप है, और ये देखिए ये एक पैराबोलिक शेप है, इसका एक ग्राफ हमने इस तरह से बनाया है। And now on the basis of this graph, we have to give the answers of certain questions. And now the questions are on your screen.
The zeros of the polynomial whose graph is given are, देखिए यहां पे ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखिए ये ग्राफ इसका, एक दिस पॉइंट इज वन एंड दिस पॉइंट इज, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर ये क्वेश्चन होता कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, तो हमारा आंसर होता टू। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, क्वेश्चन है कि वो जीरो कौन कौन से हैं। देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज टू, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 8। So the two zeros are -2 and 8. This is the answer of the first part. ये टू जीरोस है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। उसके लिए फिर से हमें उस पर जाना पड़ेगा। द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा हम लेंगे। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -2 + 8 दैट इज 6, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज -2 इंटू 8 दैट इज -16। यहाँ पे एक आप जीरोस अल्फा है हमारे पास -2 और दूसरा बीटा है। टू जीरोस को में से एक को हम अल्फा सपोज कर लेते हैं और दूसरे को बीटा सपोज कर लेते हैं। Now you write, we replace the value of alpha plus beta x square as it is minus as it is. Alpha plus beta that is 6x as it is, and alpha into beta that is -16. So that is, sorry, that is alpha plus beta, that is, yes. So it is x square -6x-16। यहां पे बहुत इंटरेस्टिंगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, इस तरह से है। और हमें पता है कि ऐसे केसेस में द इन दिस केस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है, मीन्स ए इज नेगेटिव। यहां पे ये एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है, तो क्या करिएगा, इसको नेगेटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय -1। सो दिस विल बी -x², this will be minus minus plus 6x, and this will be -16 into -1 that is +16, means इन सब का साइन चेंज कर दीजिए। तो दैट इज -x² plus 6x plus 16. So answer of this question is -x² plus 6x plus 16, right? अब क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 4। यहां पे आप x इज 4 पुट करिए, तो देखिए माइनस एज इट इज, ये -4² नहीं होगा स्टूडेंट, माइनस बाहर की तरफ है, दैट इज x² है, तो x की जगह आप पुट करिए 4 होल स्क्वायर। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, दे राइट -4 होल स्क्वायर, नो नो नो, माइनस देन x होल स्क्वायर है, plus 6 into 4 is plus 16. So on simplification, this gives the value 24. And the question, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए फोर्थ पार्ट इसका आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये टनल का जो रिप्रेजेंट किया होता -x² प्लस 3x -2 से, तो इसके जीरोस क्या होते। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैं इसको थोड़ा रब करता हूं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो -x² प्लस 3x -2 है, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो फैक्टर्स होंगे, ईच फैक्टर शुड बी पुट इक्वल टू 0। हर एक फैक्टर को आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिएगा। देख कैसे, ये रहा, यस, देखिए वी फैक्टराइज -x²
plus 3x minus 2. You split by splitting the factorize by splitting the middle term. You can write minus x square plus 2x plus 1x minus 2 minus x common, that is plus x minus 2 plus 1 common, x minus 2, again x minus 2 is common, and what is left? Minus x plus 1. इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, वन इज x माइनस 2 एंड अदर इज माइनस x प्लस 1. जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? वी पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0. सो हियर put x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2. एक 0 तो हमारा आ गया 2. And now put the second factor equal to 0, minus x plus 1 is equal to 0. So x is equal to 1. So second हमारा zeros आ गया 1. So what are two zeros? Two zeros are 2 and 1. Minus x plus 1 is equal to 0. देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं फिर से बताता हूं. ये 1 इधर रखिए, जब माइनस राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा इक्वल के, तो ये इट विल बी प्लस x. दैट इज, और यू कैन राइट x इज इक्वल टू 1. So the two zeros are 2 and 1 of this quadratic polynomial, right? A different question है. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि इफ वन ऑफ द जीरो इज 4 एंड डिफरेंट क्वेश्चन है. इन ऊपर ये 1 2 3 4 क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है. इफ वन ऑफ द जीरो इज 4 एंड सम ऑफ जीरो इज -3, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएंगे तो देखिए क्या लिखेंगे? सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? -3 है. इनमें से एक 0 4 है, तो अल्फा की जगह 4 लिखिए. अल्फा प्लस बीटा इज -3, सो बीटा इज दैट इज -7. अब हमारे पास एक अल्फा का वैल्यू भी आ चुका है और बीटा का वैल्यू भी आ चुका है. अल्फा इज you can write here alpha is 4 and beta is -7. Using the same formula here, ये same formula हम यहाँ पे यूज करेंगे. देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा जगह इसमें मैं बनाता हूं. ये देखिए राइट द फॉर्मूला. एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला है. एल्फा प्लस बीटा देखिए कितना, सम तो पहले से इट इज गिवन -3. सो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज. स्टूडेंट ये माइनस को आप एज इट इज लिखना है. एल्फा प्लस बीटा की जगह हमें लिखना है -3 एक्स एज इट इज. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 into -7, that is -28. So we can write here, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करता हूं. एक्स स्क्वायर -3x माइनस 28. लेकिन देखिएगा, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन आपका इसको अगर आप ये डाउनवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर से इसको लिख सकते हैं -x², चेंज द साइन, एंड दैट इज, सॉरी, इट इज +3x माइनस माइनस प्लस. तो देखिए माइनस इसका -3x एंड दैट इज +28. So this is required the polynomial when the sum of zero is -3 and one of the zeros is 4. ये टनल है. ये टनल कैसा है? ये डाउनवर्ड है. डाउनवर्ड के लिए हमें हमेशा ही x का कोएफिशिएंट को नेगेटिव रखना पड़ेगा. कीप इन माइंड. अब इसमें देखिए ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि हमें हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, and we get this answer. So the answer of the last part, that is -x²
-3x plus 20. दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, we already have written -2 and 8 answer. We already have written that is minus x square plus 6x plus 16. That is already 24. That is 2 and 1. And that is x square minus x square minus 3x plus 28. That's all for this question. One day, due to heavy storm, an electric wire got bent as shown in the figure. इलेक्ट्रिक वायर है, इस तरह से मुड़ गया है, बेंट हो गया है. It followed some mathematical shape of curve, and now on the basis of this curve, we have to give answers of certain questions. And now the questions are on your screen. How many zeros are there for the polynomial means in this shape? देखिए, ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. लेकिन हमें ये बताना है कि कितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है, मीन्स कितने जीरोस हैं. तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ये 3 जीरोस हैं. कौन कौन से जीरोस हैं? देखिए, सीधा एक्स कोऑर्डिनेट, आप हर एक पॉइंट का जहां पे इंटरसेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, 102 हुआ. X coordinate of origin is 0, so that is other 0 is 1, and X coordinate of this point, that is 2. Sorry, this is -2, and this is 0, and this is 2. So 3 zeros इसके हुए, -2, 0 and 2. देखिए फिर से, इसका X coordinate -2, the X coordinate of this point is 0, and X coordinate of this point is +2. So the 3 zeros of this the graph, means the curve in this figure are -2, 0 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड पार्ट है इसका. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूं जीरोस आर -3 and 4. We have a formula for the quadratic polynomial x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Here, sum of zeros means alpha plus beta, that is -3 plus 4 is 1. And product of zeros, that is -3 into 4, that is -12. So, in place of alpha plus beta, you can write 1. Means here, in place of this, you write 1. And in place of alpha into beta, means alpha into beta, we can write -12. So, x square as it is, minus as it is, alpha plus beta, that is 1x, and alpha into beta, that is -12. Or you can write x square minus x minus 12. आंसर, ये इसका आंसर हुआ. And the fourth part is, if one zero of the polynomial is 6, then find the other zero. 2 ways से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं. देखिए, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक जीरो पहले से 6 दे रखा है, सेकेंड जीरो बीटा आपने सपोज किया, माइनस बी एज इट इज, बी का वैल्यू है -5 और ए का वैल्यू है 1. सो
6 plus beta is 5 and beta is 5 minus 6, that is -1. तो other 0 इसका हो गया -1, and that is the answer of this question. So student, that's all. These are 5 case study based questions in this class. Thank you.